Okay, so earlier we discussed 6 cases. Now for shapes of molecules, for Weissenberg theory, the next case is case 7. Now in case 7, central atom has 5 bond pairs, and 0 lone pairs. So if 5 bond pairs and 0 lone pairs are present around the central atom, this is what we are talking about, the central atom, around the central atom. Then shape will be trigonal bipyramidal. Shape is trigonal bipyramidal, and bond angles are 120 degree, 90 degree, and 180 degree. So these 3 bond angles may be present, and so 3 bond angles would be seen in this shape, trigonal bipyramidal, and the shape will develop when 5 bond pairs and 0 lone pairs are there around the central atom. Now, in this very shape, trigonal bipyramidal, may 3 bonds will be there in one plane, like ये 3 bond pairs हैं, this is the central atom, और 3 bond pairs एक ही plane में हैं. तो अगर इनके bond angle को देखें तो this very bond angle is 120 degree, right? This very bond angle is 120 degree, and this very bond angle is 120 degree. तो ये 3 atoms एक ही plane में हो, sorry, 3 bonds एक ही plane में होंगे, and the 4th bond is out of the plane. This very bond is out of the plane, and the 5th bond is into the plane. As we discussed earlier, wedge is for out of the plane and dotted is for into the plane. तो wedge का in solid lines के साथ bond angle will be 90 degree, right? So if you consider this very bond angle, wedge का इस solid line के साथ this is 90 degree. Wedge का इस solid line के साथ angle is 90 degree. इस wedge का इस solid line के साथ भी angle 90 degree होगा. And one of the bond angle is 180 degree, and that is जो bond out of the plane है और जो into the plane है, they are 180 degree apart. So this is how we need to draw. ये 3 bonds एक ही plane में होंगे. One of the bond is out of the plane, and the other bond is into the plane. तो इस तरह से अगर हम draw करें तो this shape is trigonal bipyramidal. This shape is trigonal bipyramidal. तो बेटा कौन से molecules हैं जो इस shape को follow करेंगे? If I consider PCl5, तो पहले dot and cross diagram draw करके check करना है कि what is the arrangement of bond pairs and lone pairs around the phosphorus atom. So phosphorus has 5 valence electrons like this. So 1 chlorine here, 1 chlorine here, 1 chlorine here, 1 chlorine here, and 1 chlorine here. So here you can see that phosphorus has 5 bond pairs. क्योंकि Weissenberg theory में we have to consider the central atom only. तो phosphorus central atom इसको check करें, 5 bond pairs हैं. So इसमें से 3 bonds एक plane में होंगे. 4th bond is out of the plane, or 5th bond is into the plane. This is how we need to draw this trigonal bipyramidal shape. Trigonal bipyramidal shape can also be drawn like this. Like this was PCl5. एक wedge ले लें, ये dotted ले लें, और ये solid line ले लें. ये solid line ले लें और ये solid line ले लें. This is also trigonal bipyramidal shape. This is trigonal bipyramidal shape, right? Or you can draw this trigonal bipyramidal like this as well. ये 3 solid line आप इस तरह से ले, एक wedge ले and एक dotted ले. So it's your choice the way you want to make this shape. Both are trigonal bipyramidal shapes. Next situation is case 8, and in case 8 there exists 6 bond pairs, and 0 lone pairs around the central atom. So the central atom के around 6 bond pairs, 0 lone pairs, so then shape will be octahedral, and bond angle will be, shape is octahedral, and bond angle is 90 degree and 180 degree, right? अच्छा, अब ये जो octahedral shape है, इसमें जो 4 bonds हैं वो एक plane में होंगे. ये 4 bonds एक ही plane में हैं. So one of the bond is out of the plane and the other bond is into the plane. This is the situation. This is actually octahedral shape.
अब इसमें बॉन्ड एंगल बेटा देख लें तो दिस वेरी बॉन्ड एंगल इज 90 डिग्री, दिस वेरी बॉन्ड एंगल इज आल्सो 90 डिग्री, this bond angle is 90 degree and this bond angle is also 90 degree, right? तो ये 90 डिग्री हैं बॉन्ड एंगल्स। और फिर जो बॉन्ड्स डायगोनल पे हैं उनके बॉन्ड एंगल 180 डिग्री होंगे जो डायगोनल पे हैं। इन ऑर्डर टू गिव यू एन इंप्रेशन ऑफ 3D, लेट्स से कि ये प्लेन है, तो ट्राइगोनल सॉरी ऑक्टाहेड्रल शेप विल बी लाइक दिस। 4 बॉन्ड्स जो हैं वो एक ही प्लेन में हैं, 4 बॉन्ड्स एक प्लेन में हैं, एक बॉन्ड आउट ऑफ द प्लेन होगा और एक इनटू द प्लेन। So you can clearly monitor कि bond angle क्या है। This is octahedral shape। Bond angle के लिए now this bond angle is 90 degree। अगर ये bond angle ले तो this is 180 degree, right? अगर ये वाला bond angle ले तो ये भी 180 degree। तो जो bonds diagonal पे हैं उनका bond angle 180 degree होगा, right? So example of this shape is sulfur hexafluoride। Sulfur has 6 valence electrons। So 6 fluorine atoms each shares 1 electron with 1 electron of sulfur। तो अब आप देखें सल्फर के अराउंड 6 बॉन्ड पेयर्स हैं और 0 लोन पेयर्स हैं, तो शेप इस मॉलिक्यूल की ऑक्टाहेड्रल होगी। दिस ऑक्टाहेड्रल शेप कैन बी ड्रॉन लाइक दिस। ये 4 फ्लोरीन एटम्स एक ही प्लेन में हैं, फिफ्थ फ्लोरीन एटम इज आउट ऑफ द प्लेन एंड सिक्स्थ फ्लोरीन एटम इज इनटू द प्लेन। ये ऑक्टाहेड्रल शेप इस तरह से भी ड्रॉ हो सकती है कि इफ यू टेक 2 wedges here and 2 dotted lines like this and 2 solid lines are like this। So fluorine here, fluorine here, fluorine here, fluorine here, fluorine here, and fluorine here। So both these shapes are octahedral shapes। And then we'll move to the last case, which is case 9। This is case 9। Acha, now but in this case 9, what happens, we have 4 bond pairs and 2 lone pairs around the central atom। अगर central atom के around 4 bond pairs हों और 2 lone pairs हों around the central atom, ठीक है, 4 bond pairs हों और 2 lone pairs हों around the central atom, तो फिर shape will be square planar। Shape will be square planar and bond angle will be 90 degree and 180 degree, ठीक है। तो now the square planar shape is like this कि ये अगर हम एक plane ले लें, this is plane, right, and this is the central atom, तो ये एक bond pair will be like this, the other bond pair will be like this, the third bond pair is like this and fourth bond pair is like this। These are 4 bond pairs। और फिर एक one of the lone pair is like this and the other lone pair is like this। एक lone pair out of the plane और दूसरा lone pair into the plane है। और 4 bonds प्लेन के अंदर होंगे, हर 2 bonds के दरमियान जो एंगल होगा दैट इज 90 डिग्री, लेकिन 180 डिग्री इज आल्सो अवेलेबल। जो डायगोनल पे bonds हैं उनका जो एंगल होगा दैट इज 180 डिग्री। द एग्जांपल फॉर दिस शेप इज xenon tetrafluoride। We know that xenon has 8 valence electrons, so xenon will share electrons with 4 fluorine atoms like this। ये dot and cross diagram हमें बता रहा है कि 4 bond pairs and 2 lone pairs are there around xenon atom। तो हम शेप जो बनाएंगे दैट इज स्क्वायर प्लेनर। ये 4 फ्लोरीन एटम्स हैं, वन ऑफ द लोन पेयर इज हियर एंड द अदर लोन पेयर इज हियर, राइट। अच्छा, ये स्क्वायर प्लेनर शेप कैन आल्सो बी ड्रॉन लाइक दिस कि 2 वेजेस ड्रॉ करें, 2 wedges like this and 2 dotted lines like this, fluorine, fluorine, fluorine and fluorine। So a lone pair and a lone pair। So this is how these molecules recipe theory is। The 9 situations and 9 different तरह की shapes आपके syllabus में under discussion रह सकते हैं। Okay, now आप इन shapes को दूसरे एंगल से देखें। So ये discussion इसलिए है कि आपको ये shapes memorize हो जाएं।
Now this shape is linear shape, and bond angle over here is, this is linear shape, and bond angle जो है वो 180 डिग्री है। अब ये वाला बॉन्ड एंगल लें, दिस 180 डिग्री, अगर ये वाला बॉन्ड एंगल लें तो भी ये 180 डिग्री होगा। दिस इज द सेंट्रल एटम, और ये दो एटम्स हैं, दो बॉन्ड पेयर हैं, राइट। सो ये सिचुएशन है फॉर टू बॉन्ड पेयर्स एंड जीरो लोन पेयर्स, टू बॉन्ड पेयर्स एंड जीरो लोन पेयर्स अगर हैं सेंट्रल एटम के अराउंड, तो दिस काइंड ऑफ शेप विल बी डेवलप्ड। फॉर एग्जांपल HCN अगर आपसे कहा जाए तो कार्बन हैज 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लाइक दिस, और नाइट्रोजन हैज 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करेगा कार्बन से, और हाइड्रोजन विल बी लाइक दिस। तो ट्रिपल एंड डबल कोवेलेंट बॉन्ड विल बी टेकन एज वन बॉन्ड पेयर, सो वन बॉन्ड पेयर हियर एंड वन बॉन्ड पेयर हियर। सो HCN विल हैव लीनियर शेप, HCN की लीनियर शेप होगी, बॉन्ड एंगल 180 डिग्री होगा, राइट। लीनियर शेप विल बी लाइक दिस। अच्छा, अब यहाँ एक और डिस्कशन भी है, तो ये है कि आपसे अगर पूछें कि डू ऑल द एटम्स लाई इन वन प्लेन, तो ये 2D शेप है, ये 2D शेप है। तो डू ऑल द एटम्स लाई इन वन प्लेन, तो यस, डू ऑल एटम्स lie in one plane? तो answer is yes, because linear shape is planar. The answer is yes. ठीक है। अच्छा बेटा, अगर आपसे ये क्वेश्चन करें कि do three atoms lie in one line, okay, three atoms, are three atoms present in one line? Atoms lie in or present in one line, so what would be the answer? Are three atoms present in one line? So yes, answer will be yes. तीन atoms एक ही line में है, yes, ये तीनों atoms एक line में lie कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बेटा अगर नेक्स्ट शेप की हम बात करें तो ना, दिस इज द अदर शेप। तो अब ये सेंट्रल एटम के अराउंड थ्री बॉन्ड पेयर्स हैं, थ्री बॉन्ड पेयर्स हैं और जीरो लोन पेयर्स हैं, जीरो लोन पेयर्स हैं। तो दिस वेरी शेप इज ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर। एंड और ये शेप भी बेटा 2D शेप है, दिस इज 2D शेप। तो बॉन्ड एंगल आप देख लें, ये बॉन्ड एंगल 120 डिग्री है, ये बॉन्ड एंगल भी 120 डिग्री है, ये बॉन्ड एंगल भी 120 डिग्री है। इसमें अगर आपसे पूछे कि डू ऑल एटम्स लाई ऑन वन प्लेन, डू ऑल एटम्स लाई इन वन प्लेन, तो आंसर इज यस, ऑल द एटम्स लाई इन वन प्लेन, यस। और अगर आपसे ये पूछे कि तीन एटम्स एक लाइन में लाई करते हैं, थ्री एटम्स इन वन लाइन, तो क्या तीन एटम्स एक लाइन में लाई करते हैं, थ्री एटम्स इन वन लाइन? इसका आंसर है नो, थ्री एटम्स एक लाइन में लाई नहीं करते। ये देखें इस शेप में, अगर मैं ऐसे लाइन ड्रॉ करूं, ये लाइन अगर मैं ड्रॉ करूं, तो इस लाइन पे दो एटम लाई करते हैं, ठीक है, तीन एटम एक लाइन पे लाई नहीं करते। अगर मैं लाइन यूं ड्रॉ करूं, तो क्या तीन एटम एक ही लाइन पे लाई करते हैं? नहीं, दो एटम्स एक लाइन पे लाई करते हैं। तो ट्राइगोनल प्लेनर शेप इज दैट शेप जिसमें तीन एटम्स एक ही लाइन पे लाई नहीं करते, हाँ सारे एटम्स एक ही प्लेन में लाई करते हैं, यस। देन बेटा उसके बाद इफ दिस इज द सिचुएशन, तो ये ये ऐसी शेप है जिसमें यहाँ पे एक लोन पेयर है, a lone pair is present and two bond pairs are present, so one lone pair or two bond pairs are present, one lone pair or दो bond pairs are present, two bond pairs। तो ऐसी शेप को बेटा बेंट शेप कहेंगे, बेंट या नॉन लीनियर या वी शेप, बेंट नॉन लीनियर या वी शेप होगा। एंड बॉन्ड एंगल in this case is 117 degree, and this shape is also 2D shape, 2D shape में all atoms lie in one plane, yes, all atoms lie in one plane, तो answer is yes, one plane, तो yes, answer yes है, ठीक है। और थ्री एटम्स एक लाइन पे लाई करते हैं, थ्री एटम्स ऑन वन लाइन, तो द आंसर इज नो, तीन एटम एक लाइन पे लाई नहीं करते। अगर मैं यूं एक लाइन ड्रॉ करूं, तो एक लाइन पे दो एटम लाई कर रहे हैं, तीसरा एटम उस लाइन पे लाई नहीं कर रहा। तो ये एमसीक्यूज में बेटा आपसे पूछ सकते हैं ये क्वेश्चन कि क्या सारे एटम्स एक प्लेन पे लाई करते हैं या नहीं, और क्या तीन एटम्स एक लाइन पे लाई कर पा रहे हैं इस शेप में, तो द आंसर इज नो। उसके बाद बेटा हम मूव करें तो दिस इज टेट्राहेड्रल शेप, दिस वेरी शेप इज टेट्राहेड्रल, क्योंकि सेंट्रल एटम हैज फोर बॉन्ड पेयर्स एंड जीरो लोन पेयर्स, फोर बॉन्ड पेयर जीरो लोन पेयर्स। दिस वेरी बॉन्ड एंगल इज 109.5 डिग्री, this very bond angle is 109.5 degree,
This very angle is 109.5 degree. This very angle is 109.5 degree. This very angle is 109.5 degree. यानी हर दो बॉन्ड्स के दरमियान बॉन्ड एंगल इज 109.5 डिग्री है। ठीक है, टेट्राहेड्रल शेप है और ये 3D शेप है। दिस इज, ये 2D शेप नहीं है। ठीक है, ये 3D शेप है। और आप देखें ये वाला जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड आपको ऐसे फील हो रहा है कि ये स्क्रीन से बाहर आ रहा है। ठीक है, तो जो बॉन्ड स्क्रीन से बाहर आए यानी प्लेन से बाहर आए उसे वेज से शो करते हैं। ठीक है, और ये बॉन्ड देखें, ये वाला जिसको मैंने रेड राइटिंग से शो किया है, ये ऐसा फील हो रहा है कि स्क्रीन के बैक साइड पे, तो जो बॉन्ड बैक साइड पे उसे डॉटेड लाइन से शो करेंगे। राइट, और फिर आप देखें कि दो बॉन्ड्स, ये वाला बॉन्ड, ये पर्पल राइटिंग से मैं शो कर रहा हूँ, और ये वाला बॉन्ड ये स्क्रीन के ऊपर है, प्लेन के ऊपर है। तो जो बॉन्ड्स प्लेन के ऊपर लाई करेंगे उन्हें सॉलिड लाइन से हम शो करेंगे। तो दो सॉलिड लाइंस हैं, एक वेज और एक डॉटेड है। वेज का मतलब आउट ऑफ द प्लेन, डॉटेड का मतलब इनटू द प्लेन। ठीक हो गया। अब इसमें क्या ऑल द एटम्स लाई इन वन प्लेन? तो आंसर इज नो, ऑल एटम्स लाई ऑन वन प्लेन। तो द आंसर इज नो, सारे एटम्स एक प्लेन पे लाई नहीं करते। क्या 3 एटम्स एक लाइन पे लाई करते हैं? 3 एटम्स ऑन वन लाइन? क्या 3 एटम्स, कोई भी 3 एटम्स का एक लाइन पे लाई करते हैं? तो अगर आपको कंफ्यूजन हो तो आप बेटा चेक कर लें इसमें। लेट्स से अगर आप एक लाइन ड्रॉ करें लाइक दिस, एक लाइन पे 2 एटम्स तो लाई कर रहे हैं, थर्ड एटम लाई नहीं कर रहा है। 3 एटम्स एक लाइन पे लाई नहीं कर रहे इस टेट्राहेड्रल शेप। राइट, देन कम्स दिस शेप। तो ये शेप, दिस इज ट्राइगोनल पिरामिडल। यहाँ एक लोन पेयर भी अवेलेबल है। इस बेसिकली सेंट्रल एटम के अराउंड 3 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर अवेलेबल है। एंड shape is trigonal pyramidal. Trigonal pyramidal. So this shape is also 3D shape. This is 3D shape. ठीक है, तो you can draw this shape like this as well कि wedge and one of the bond is dotted, one of the bond is solid और एक lone pair है। इस शेप में भी आप देखिए कि 3 एटम एक लाइन पे लाए नहीं कर रहे, और ऑल द एटम्स डज नॉट प्रेजेंट इन वन प्लेन। क्योंकि 3D शेप है तो सारे एटम्स एक प्लेन में नहीं लाई कर रहे और 3 एटम्स भी एक लाइन पे लाई नहीं कर रहे। देन कम्स दिस वेरी शेप। तो दिस इज वी शेप। अब ये ऐसी वी शेप है जिसमें 2 लोन पेयर हैं, 2 लोन पेयर्स हैं और 2 बॉन्ड पेयर्स हैं। सो 2 लोन पेयर्स एंड 2 बॉन्ड पेयर्स। दिस शेप इज बेंट और वी शेप या नॉन लीनियर शेप। एंड बॉन्ड एंगल फॉर दिस शेप इज 107 डिग्री। बेटा ऊपर वाली जो शेप है इसका बॉन्ड एंगल 107 होगा। लोन पेयर की वजह से रिपल्जन लोन पेयर की ज्यादा होगी तो बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस। Here bond angle is 104. अब this shape is 2D shape. तो 2D shape में all atoms lie in one plane. तो yes, all atoms lie in one plane. तो answer is yes. सारे atoms एक ही plane में lie कर रहे हैं। क्या 3 atom एक 3 atoms on one line? तो answer is no. एक line पे क्या 3 atoms lie कर रहे हैं? Answer is no. अगर मैं यूं एक line draw करूं तो इस line पे 2 atoms तो lie कर रहे हैं, थर्ड atom इस line पे lie नहीं करेगी। Okay. Now this very shape is trigonal bipyramidal. This is trigonal bipyramidal. And this shape is developed when central atom has 5 bond pairs around it and 0 lone pairs. 5 bond pairs or 0 lone pairs. Okay, this trigonal pyramidal shape is developed. अब इस trigonal pyramidal shape को अगर हम ड्रॉ करें तो आप देखें इसमें ये जो बॉन्ड है, ये जिसको मैंने ब्लैक राइटिंग से शो किया है, ये ऐसे फील हो रहा है कि स्क्रीन प्लेन से बाहर आ रहा है। तो दैट इज व्हाई इस बॉन्ड को हम वेज से शो कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज द बॉन्ड व्हिच इज आउट ऑफ द प्लेन। तो ये बॉन्ड देखें जिसको मैं रेड लाइन से शो कर रहा हूँ, ये बॉन्ड अपीयर हो रहा है कि ये स्क्रीन के बैक साइड पे है, जिसको मैं डॉटेड लाइन से शो कर रहा हूँ, ये इनटू द प्लेन होगा। और फिर जो बाकी बॉन्ड्स हैं 3 वो स्क्रीन के ऊपर हैं। ये बॉन्ड ये पर्पल राइटिंग से जो मैं बॉन्ड शो कर रहा हूँ 3, तो ये ऑन द प्लेन लग रहे हैं, ये और ये बॉन्ड और ये बॉन्ड। दिस इज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप। अब इसमें एंगल्स बेटा आपको पता होना चाहिए कि दिस वेरी एंगल इज 120 डिग्री, ये एंगल भी 120 डिग्री है और ये एंगल भी 120 डिग्री है। ठीक है, वेज डॉटेड और ये सॉलिड लाइन जो मेंशन है ये 120 डिग्री एंगल है। ये वाला जो बॉन्ड एंगल है दिस इज 90 डिग्री। ठीक है, ये वाला बॉन्ड एंगल भी 90 डिग्री है। ठीक है, और 180 डिग्री भी यू कैन सी कि जो ऊपर और नीचे जो बॉन्ड्स हैं इनके दरमियान 180 डिग्री एंगल विल बी प्रेजेंट। सो दिस इज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल जब 5 बॉन्ड पेयर्स हों। Then the next shape is octahedral shape. This is octahedral
octahedral shape. Octahedral shape में 6 bond pairs are there around the central atom और 0 lone pairs are present. ठीक है, तो एक बॉन्ड एंगल बेटा मेंशन है, ये बॉन्ड एंगल भी 90 होगा, ये बॉन्ड एंगल भी 90 होगा, ये बॉन्ड एंगल भी 90 होगा, फिर इसका इससे जो बॉन्ड एंगल है ये भी 90 डिग्री होगा. ठीक है, तो यू कैन आइडेंटिफाई 90 डिग्री एंगल्स. इसी तरह 180 डिग्री एंगल्स जो बॉन्ड्स डायगोनल पे आ रहे हैं, जो बॉन्ड डायगोनल लाइक ये जो बॉन्ड एंगल होगा ये 180 डिग्री होगा, ये वाला जो बॉन्ड एंगल है ये भी 180 डिग्री पे होगा. ठीक है, तो जो डायगोनल पे बॉन्ड है वो 180 डिग्री होगा उनका बॉन्ड एंगल. अच्छा यस, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या ऑल द एटम्स लाई इन वन प्लेन. तो देखें ये जो एटम है ए बी सी एंड डी, ये 4 एटम्स एक प्लेन पे लाई करेंगे. ए बी सी एंड डी लाई ऑन वन प्लेन, राइट. और ये जो ई और एफ है, ई और एफ अलग प्लेन पे लाई कर रहे हैं. ई एंड एफ लाई ऑन वन प्लेन. ठीक है, तो ए बी सी और डी इनका प्लेन एक है और ई और एफ वालों का प्लेन एक है और दोनों प्लेन्स एक दूसरे से डिफरेंट हैं. अगर क्वेश्चन ये हो कि 3 एटम्स लाई ऑन वन लाइन, 3 एटम्स लाई ऑन वन लाइन, तो क्या 3 एटम्स एक लाइन पे प्रेजेंट हैं. अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें लाइक दिस, तो यस इस लाइन पे 3 एटम्स प्रेजेंट हैं. ठीक है, या हम लाइन यूं ड्रॉ करें तो एक लाइन पे 3 एटम्स आ रहे हैं, तो आंसर इज यस. 3 एटम्स, कोई भी 3 एटम्स लाई ऑन वन लाइन, तो यस आंसर यस होगा. 3 एटम्स एक लाइन पे लाई कर रहे हैं. अच्छा ये और ये शेप बेटा 3D शेप है. दिस ऑक्टाहेड्रल शेप इज 3D शेप, राइट. अच्छा यहाँ भी बेटा हमें ये डिस्कशन करनी है. दिस वेरी शेप इज 3D शेप. ट्राइगोनल बायपिरामिडल इज 3D शेप. तो क्या ऑल द एटम्स लाई ऑन वन प्लेन. देखो ये एटम ए, एटम बी और एटम सी, ए बी एंड सी लाई ऑन वन प्लेन, राइट. और फिर D and E lie on another plane. D and E lie on one plane. लेकिन दोनों का प्लेन एक दूसरे से डिफरेंट होगा. D और E अलग प्लेन है, A B C अलग प्लेन है, दोनों प्लेन्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं या डिफरेंट हैं. अच्छा, तो क्या ऑल द एटम्स लाई ऑन वन प्लेन, तो आंसर इज नो. सारे एटम्स एक प्लेन पे लाई नहीं कर रहे, ऑब्वियसली. दिस इज 3D शेप, ऑल द एटम्स डू नॉट लाई ऑन वन प्लेन. लेकिन अगर ये क्वेश्चन हो कि 3 एटम्स, कोई भी 3 एटम्स लाई ऑन वन लाइन, क्या एक लाइन पे 3 एटम्स प्रेजेंट हो सकते हैं. तो यस हो सकते हैं. दिस डी एंड ई, और तो 3 एटम्स एक ही लाइन में लाई कर रहे हैं, कोई भी 3 एटम्स. तो यस ये वाले 3 एटम्स जो डी ई और सेंट्रल एटम है, डी ई और सेंट्रल एटम्स ये एक ही लाइन में लाई कर रहे हैं, राइट. And then comes the square planar shape. तो square planar shape ये 2D shape. इसमें one of the lone pair is present here, the other lone pair present here. इसमें actually 2 lone pairs हैं और 4 bond pairs हैं. 2 lone pairs and 4 bond pairs are present around the central atom. तो क्या all the atoms lie in one plane? तो answer is yes. All atoms lie on one plane. Answer is yes. और क्या 3 atoms lie on one line, 3 atoms lie on one line, तो इसका आंसर भी यस है. अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें ऐसे, ये लाइन ड्रॉ करें, तो इस लाइन पे 3 एटम्स यस प्रेजेंट हैं. सारे एटम्स एक प्लेन में भी हैं और कोई भी 3 एटम्स एक लाइन पे लाई कर रहे हैं, तो यस उसका आंसर भी यस है. ठीक है. अच्छा, अभी शेप्स को बेटा याद करने के लिए डिफरेंट वे आप ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर्स की कंडीशन लिखें और इसको इन राइटिंग प्रैक्टिस करें. अगर एग्जाम में आपसे शेप्स का पूछा जाए तो आपने शेप्स जो है वो इस शो जो प्रॉपर शेप्स हैं शो करनी है. जो 3D शेप्स हैं वो 3D लगें, जो 2D शेप्स हैं 2D लगें. अच्छा, ये एक काइंड ऑफ एप्लीकेशन है जिससे यू कैन आइडेंटिफाई. फॉर एग्जांपल ये इस शेप को बेटा देखें, तो ये पर्पल जो बॉल है दिस इज सेंट्रल एटम और 2 बॉन्ड पेयर्स हैं सेंट्रल एटम के अराउंड. और नीचे आप देख लें जो शेप आ रही है मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री हम देखेंगे. हमारे सिलेबस में मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री है जो कि लीनियर है. इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री सिलेबस का पार्ट नहीं है, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री लीनियर है. अगर 2 बॉन्ड पेयर हों अराउंड दी सेंट्रल एटम और यहाँ बॉन्ड एंगल शो करें तो बॉन्ड एंगल 180 डिग्री आ रहा है. ठीक है, 2 बॉन्ड पेयर हों. तो अगर ये 3 बॉन्ड पेयर हों, तो 3 बॉन्ड पेयर हों तो शेप यू कैन सी इट्स ट्राइगोनल प्लेनर एंड द बॉन्ड एंगल इज 120 डिग्री.
अच्छा 3 बॉन्ड पेयर हों, अच्छा अब अगर हम इसको 2 बॉन्ड पेयर कर दें तो इट्स लीनियर शेप अगेन एंड बॉन्ड एंगल इज 180 और 2 बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर करते हैं तो 2 बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर करते हैं, ये एंगल तो दिखा रहे हैं 120 लेकिन लोन पेयर की रिपल्शन ज्यादा होती है तो दिस बॉन्ड एंगल शुड बी 117 डिग्री। लोन पेयर के अराइवल से बॉन्ड एंगल 2.5 से लेकर 3 डिग्री तक डिक्रीज होता है। लोन पेयर के आने से बॉन्ड एंगल में 2.5 से लेकर 3 डिग्री का फर्क पड़ता है तो इसलिए ये 117 होना चाहिए, राइट। ओके, तो ये 3 बॉन्ड पेयर्स हों तो दिस इज लीनियर शेप। 4 बॉन्ड पेयर होना, ये 4 बॉन्ड पेयर्स हैं, दिस इज टेट्राहेड्रल शेप। शेप टेट्राहेड्रल और बॉन्ड एंगल आप देखें सारे के सारे 109.5 डिग्री हैं। दिस वाली शेप इज टेट्राहेड्रल शेप। उसके बाद अगर एक बॉन्ड पेयर हम कम कर दें और लोन पेयर डेवलप कर दें तो दिस इज ट्राइगोनल पिरामिडल शेप, ठीक है। एक बॉन्ड पेयर और कम कर दें और 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर कर दें तो दिस इज वी शेप। अब ये बॉन्ड एंगल 104 होता है इस वी शेप का, ये 109 दिखा रहे हैं। ओके, अब अगर ये हम 5 बॉन्ड पेयर्स कर दें, ये 5 बॉन्ड पेयर्स हैं, ठीक है, दिस इज ट्राइगोनल बायपिरामिडल। और अगर हम 6 बॉन्ड पेयर्स कर दें तो दिस इज ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। और अगर 4 बॉन्ड पेयर्स करके 2 लोन पेयर्स कर दें तो दिस इज स्क्वायर प्लेनर, दिस वाली शेप इज स्क्वायर प्लेनर। सो ये बेटा कुछ डिस्कशन थी, आप इस मॉलिक्यूल्स को डिफरेंट गूगल सर्च पे करें देखते रहें तो आपको याद हो जाएंगी सारी सिचुएशन सारे केसेस।